السلام علیکم، علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں گلاب بلوچ۔ اے اللہ جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے میں ہمیں ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھ، آمین۔ اور آگے بڑھیں اور آپ کو خبر دیں، منڈی بہاولدین مجاہد آباد جنازہ گاہ کی چھت کو جیک لگا کر اونچا کرنے کی کوشش، مزدور کی جان لے گئی۔ ملبے کے نیچے 14 افراد دب کے 6 کی حالت نازک ہے۔ منڈی بہاولدین کے محلہ مجاہد آباد میں جنازہ گاہ کی خستہ حال چھت کو اونچا کرنے کے لیے جیک لگا کر اوپر اٹھانے کی کوشش، مزدور کی جان لے گئی۔ ایک کنال زمین پر بنی خستہ حال چھت دھماکے کے ساتھ زمین پر آ گری، جسے ایک مزدور جاں بحق ہو گیا۔ ملبے تلے سے 13 مزدوروں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ درجنوں افراد نے بھاگ کر جان بچائی۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 موقع پر پہنچ گئی۔ 6 زخمی افراد کی حالت نازک ہے۔ جنازہ گاہ سے ملحقہ 2 مکان بھی متاثر ہوئے۔ چنیوٹ سے خبر دیں، جہاں سرگودا روڈ پر 4 گھروں پر پہاڑی تودہ گر گیا، کئی افراد زخمی۔ پہاڑی تودہ گرنے سے 3 گھروں کے مکین ملبے تلے دب گئے۔ تشویشناک حالت میں 8 افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر محمد ریاض نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ کیا اور زخمیوں کی عیادت کے ساتھ ساتھ ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں، چنیوٹ میں سرگودا روڈ پر 4 گھروں پر پہاڑی تودہ گر گیا، کئی افراد زخمی۔ پہاڑی تودہ گرنے سے 3 گھروں کے مکین ملبے تلے دب گئے۔ تشویشناک حالت میں 8 افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر محمد ریاض نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ کیا اور زخمیوں کی عیادت کے ساتھ ساتھ ہر ممکن مدد کی یقین دہانی بھی کرائی۔ آپ کو بتاتے چلیں، چنیوٹ میں سرگودا روڈ پر 4 گھروں پر پہاڑی تودہ گر گیا، کئی افراد زخمی۔ پہاڑی تودہ گرنے سے 3 گھروں کے مکین ملبے تلے دب گئے۔ تشویشناک حالت میں 8 افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر محمد ریاض نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ کیا اور زخمیوں کی عیادت کے ساتھ ساتھ ہر ممکن مدد کی یقین دہانی بھی کرائی۔ شاہکوٹ سٹی وارڈ نمبر 15 میں بارش کے باعث اچانک گھر کی چھت گر گئی، جسے 4 خواتین اور 2 بچوں سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ ریسکیو 1122 عملے نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال شاہکوٹ منتقل کر دیا۔ آپ کو خبر سے آگاہ کرتے چلیں، شاہکوٹ سٹی وارڈ نمبر 15 میں بارش کے باعث اچانک گھر کی چھت گر گئی، جسے 4 خواتین اور 2 بچوں سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ ریسکیو 1122 عملے نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال شاہکوٹ منتقل کر دیا۔ شاہکوٹ بارش کے باعث اچانک گھر کی چھت گرنے سے 6 افراد زخمی، زخمیوں میں 4 خواتین اور 2 بچے شامل۔ زخمی افراد طبی امداد کے لیے THQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں، شاہکوٹ سٹی وارڈ نمبر 15 میں بارش کے باعث اچانک گھر کی چھت گر گئی۔ خیرپور کے علاقے ٹھیری میرواہ کے قریب نوجوان سے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی گئی۔ مزاحمت کرنے پر ڈاکو نے موٹر سائیکل سوار پر فائرنگ کر دی، جسے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ڈاکو فائرنگ کے بعد موٹر سائیکل سمیت فرار ہو گئے۔ زخمیوں کو مقامی اسپتال ٹھیری میرواہ منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ فرسٹ ایڈ کے بعد زخمیوں کو خیرپور ریفر کر دیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں، خیرپور کے علاقے ٹھیری میرواہ کے قریب نوجوان سے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش کی گئی۔ مزاحمت کرنے پر ڈاکو نے موٹر سائیکل سوار پر فائرنگ کر دی، جسے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ڈاکو فائرنگ کرنے کے بعد موٹر سائیکل سمیت فرار ہو گئے۔ زخمیوں کو مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ فرسٹ ایڈ کے بعد جسے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ڈاکو فائرنگ کرنے کے بعد موٹر سائیکل سمیت فرار ہو گئے۔ زخمیوں کو مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ فرسٹ ایڈ کے بعد زخمیوں کو خیرپور ریفر کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب اور بارش نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 28 افراد جان سے گئے، جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے۔ کئی مکانات بھی سیلابی ریلے میں بہہ گئے ہیں۔
खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब की तबाह कारियां। स्वाबी के इलाके मूसा बांडा में बारिश के बाइस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 बच्चों समेत 5 अफराद जान बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। कोहिस्तान के इलाके तोरगर में मकान पर तोदा गिरने से 7 अफराद जान बहक हुए जबकि मलबे से 2 बच्चों को जिंदा निकाल लिया गया। सवाब ने फिजागढ़ के मुकाम पर तोदा गिरने के बायस कलाम मंगोड़ा रोड को बंद कर दिया गया। रोड बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद सड़क को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। मालाकंड डिवीजन में तबाही मचाने वाला सैलाबी रेला नौशहरा और 4 सद्दा से गुजर रहा है। राब्ता पुल बंद किए जाने से GT रोड पर पिशावर और 4 सद्दा का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं, जबकि सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर सियाहों को भी फौरी तौर पर वापस जाने की हिदायत कर दी गई है। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में 2 रोज से जारी बारिश से मुख्तलिफ अजला में तबाही हुई और लैंड स्लाइडिंग की वजह से गिलगित बल्तिस्तान का मुल्क के दीगर हिस्सों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। लालिया में मूसलाधार बारिश ने हर तरफ जलथल एक कर दिया। निकासी आब का निजाम बेहतर न होने की वजह से गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। शकील अब्बास की रिपोर्ट देखें। में मूसलाधार बारिश से जहाँ मौसम खुशगवार हो गया तो वहीं नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए, जिसकी वजह से गलियां सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। निकासी आब का निजाम बेहतर न होने की वजह से लालिया के मेन रोड, डॉक्टर शफकत रोड, बंगला रोड, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस रोड और देगा रोड पर पानी खड़ा हो गया, जिसकी वजह से गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ बारिश के शुरू होते ही मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर गए, जिसकी वजह से बिजली की फ्राहमी भी मुअत्तल होगी। कैमरा टीम के साथ शकील अब्बास, सच न्यूज, लालिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, अटक और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से जहां मौसम खुशगवार हुआ, वहीं छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में कई अफराद जान की बाजी हार गए। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल वहीद। अटक शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में गुज़िश्ता 2 रोज से जारी बारिशों का सिलसिला ताहाल जारी है। बारिशों से मौसम खुशगवार हो गया। खड़ी फसलों पर बारिश के अच्छे और खुशगवार असरात मरतब हो गए हैं। किसान भी खुश दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब हालिया बारिशों ने मुख्तलिफ मकामात पर तबाही मचा दी। मुतअद्दिद मकानात की छतें और 4 दीवारियां गिर गईं, जिसकी वजह से एक खातून जानबाग जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। बरसाती नालों में पानी का बहाव ज्यादा होने से तौयानी आ गई। जंड में नाला रेस में पानी का बहाव ज्यादा होने से जंड वाली रोड पर ट्रैफिक का निजाम मुतासिर हुआ। कई मकामात पर बिजली का निजाम भी मुतासिर है। बाद मकामात पर गली मोहल्लों और नालियों में पानी भर गया, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानब डिप्टी कमिश्नर अटक अली अनान कमर ने मुतासर मकामात और दरियाए सिंध का दौरा किया। दरियाए सिंध में पानी के बहाव का जायजा लिया। मुतल्लिका इदारों को सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए खसूसी हदायत भी जारी कर दी। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल वहीद, सच टीवी, अटक। राजनपुर में कोय सलेमान पर हालिया बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी आ गई। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें भी तबाह हो गईं। दरिया छाछड़ से आने वाले रद कोही सैलाब ने तबाही मचा दी। रिपोर्ट करेंगे मलिक तुफैल। राजनपुर में कोई सलमान पर हालिया बारिशों के नतीजे में नदी नालों में तुगयानी आ गई है। दरिया छाछड़ से आने वाले रोड कोई सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। हाजीपुर, मौला सोनवा, चक शहीद, मोहम्मद कुर्ब, गोमवाला, ओजमान, सोनमैनी समेत दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। दरिया सिंध के नशीबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। बंगला इच्छा और सोनमैनी में सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानब रोड कोई सैलाबी पानी ने बड़ी तबाही मचाते हुए पूरी बस्ती को बहा कर ले गया। 60 से ज्यादा घरों को मुतासर कर दिया। अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करके अपनी जान बचाई। सैलाबी पानी ने पूरी बस्ती के घर का सामान, माल मवेशी बहा कर ले गया। जिले इंतजाम में ताहाल मुतासरा बस्ती में न पहुंच सकी। सैकड़ों की तादाद में लोग बेघर होकर बेयार मददगार खुले आसमान तले भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। कैमरामैन मलिक तुफैल अहमद के साथ साची न्यूज, राजनपुर। कबीरवाला में तेज बारिश के तसलसल ने शहर को तालाब में बदल दिया। पानी घरों में दाखिल होने लगा। मुतासरीन ने वजीर आजम से इमदाद की अपील कर दी। कबीरवाला और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ तेज बारिशों का सिलसिला जारी है। निकासी आब के इंतजामात न होने से पानी घरों में दाखिल होने लगा। जिली इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। बारिशों के बायस दरियाओं में भी तुगयानी आ गई। नवाई इलाके सैलाब की जद में आने से सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। कई मकामात पर हिफाजती बंद टूटने से बस्तियां उजड़ गईं। मुतासरीन ने वजीर आजम इमरान खान से मदद की अपील की है। बारिशों से दरियाए सिंध में भी पानी की सतह बुलंद होने लगी। लिया इंतजामिया ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। तरबेला डैम से निकलने वाला बड़ा सैलाबी रेला 40 घंटे के बाद लिया से गुजरेगा। नशेबी बस्तियां खाली करवाने के लिए ऐलानात किए जा रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे जहूर दुरानी।
लैया के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। चश्मा बिराज से निकलने वाले 3,55,000 क्यूसेक पानी के रेले के बायस इस वक्त लैया में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तरबेला डैम से 4,29,000 क्यूसेक पानी के अखराज और दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब के खतरे के पेश नजर लैया इंतजामिया ने फलाल अलर्ट जारी कर दिया। नशेबी इलाका की बस्तियों से लोगों के हंगामी इनखला के लिए न सिर्फ सरकारी सतह पर इलाके खाली करने के लिए ऐलानात करवाए जा रहे हैं, बल्कि रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस की टीमें भी दरियाई इलाका में पहुंच चुकी हैं। पानी की सतह बुलंद होने पर फसलें ज़ेरे आब आना शुरू हो गयी, जबकि मौदा शाहवाला और बेट गुज्जी की इंसानी आबादियों में भी पानी दाखिल हो रहा है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जिला इंतजामिया भी मुतहरिक है। पानी का बड़ा रेला 40 घंटे बाद लैया से गुजरेगा। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लैया। दरियाए झेलम और चनाब में तुगयानी जंग के 226 देहात ज़ेरे आब आ गए। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। दरियाए झेलम और दरियाए चनाब में तुगयानी के बायस जिला झंग के 226 देहात ज़ेरे आब आ गए। मुतअद्दिद देहातों का ज़मीनी राब्ता कट हो गया। मुतासरा इलाकों के अफराद घरों में मैसूर होकर रह गए। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें और चारा तबाह हो गया। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक पानी की सतह में मुसलसल कमी हो रही है। जिली इंतजामिया की जानिब से मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए, जहां पर महकमा लाइव स्टॉक, महकमा सेहत रेस्क्यू का अमला मौजूद है और मुतासरीन को इमदाद फराहम की जा रही है। डेरा गाजी खान की तहसील कोट छुटा के इलाके झकड़ इमाम शाह के मकाम पर दरियाए सिंध एक बार फिर बिफर गया। मुतअद्दिद बस्तियां दरियाबुर्द हो गईं। सुपर बंद न बनने से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गईं। रिपोर्ट करेंगे अली रजा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह डेरा गाजी खान की तहसील कोटछुट्टा के इलाके जखड़ इमाम शाह के मकाम पर दरियाए सिंध के पानी में मुसलसल इजाफे के बायस जहां पानी के बहाव में तेजी आई, वहीं जमीनी कटाव का सिलसिला भी शुरू हो गया। दरियाई कटाव के बायस जखड़ इमाम शाह के मुख्तलिफ मवाज़ियात जिनमें झोकुतरा, बस्ती सिखानी, बस्ती कासिमानी, बस्ती भुट्टा समेत दर्जनों बस्तियां दरियाई कटाव की जद में आ गई। दरियाई कटाव में मुसलसल इजाफे के बायस करीबी इलाकों के रिहायशी भी शदीद मुतासर हुए। साथ ही शीशम, आम, जामन और कीमती दरख्तों को भी दरिया अपने साथ बहा ले गया। एक तरफ जहां दरिया सिंध का कटाव तेजी के साथ जारी है, वहीं मकामी इंतजामिया की खामोशी मैनी खेज है। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार से मुतालबा किया कि दरियाई कटाव के बायस होने वाले नुकसानात का फौरी तौर पर तखमीना लगा के किसानों की माली मुआवनत की जाए। अली रजा हमदानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। कोटअदू में दरियाए सिंध में तौनसा बैराज के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल और इंतजामिया की तरफ से इंतजामात न होने की खबर सच न्यूज पर नशर होते ही इंतजामिया हरकत में आ गई। अब्बास वाला बंद समेत मुतअद्दिद मकामात पर मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए। रिपोर्ट करेंगे इसहाक काज़मी। कोटअदू सच न्यूज पर खबर नशर होने पर इंतजामिया हरकत में आ गई। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर मुतासरीन के लिए तहसील भर में 10 फ्लड रिलीफ कैंप कर दिए गए हैं। अब्बास वाला बंद, तौसा बिराज, हाकी सिपर, गाजी घाट, जंगी दरबार, बेड़ी वाला पुल मगसन समेत दीगर मुतासरा इलाकों में हेल्थ और लाइफ स्टॉक के कैंप कायम कर दिए गए हैं। कैंप इंचार्ज का कहना है, एक महकमा हेल्थ का कैंप है, अब्बास वाले पे खड़े हैं। गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने ये 11 कैंप लगाए हैं। ये लोगों के जो फ्लड रिलीफ कैंप हैं, लोगों की बीमारियों के इलाज के लिए हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट तहसील में 11 कैंप लगे हुए हैं। एहसानपुर है और ये अब्बास वाला बंद है, हाकी सिपर है और हेड तौसा है, गुजरात है, ऐसे गाजी घाट है, लसूड़ी है। यहाँ हम तमाम बीमारियों का इलाज की दवाई है जो आम बीमारी हैं, जो इसमें मुतअद्दिद बीमारियाँ हैं, खारिश है, फोड़े फुंसी हैं, बुखार है, नज़ला है, इसकी तकरीबन तमाम दवाएं हमारे पास हैं। हुकूमत को चाहिए कि मेडिकल के साथ साथ दीगर इमदाद भी फराहम की जाए ताकि बेघर अफराद आसानी से जिंदगी गुजार सकें। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज, कोटअदू। दरिया सिंध में तुगयानी से ठुल हमजा से मुल्का कच्चे के इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल है। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने लगे। रिपोर्ट करेंगे फयाज अहमद। दरियाए सिंध में तुगयानी के बाद ठुल हमजा के कच्चे के इलाके बेट अल्लाह वसया, बेट परारा में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। दरियाए सिंध से पानी बाहर निकल कर ठुल हमजा के मुख्तलिफ मौजाजात में सैलाबी पानी दाखिल। लोगों की तरफ से काश्त की जाने वाली कपास समेत मुख्तलिफ फसलात ज़ेरे आब। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने लगे। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर मोहम्मद अरशद वट्टू ने भी फ्लड के इलाकों का विजिट किया। महकमा सियाहत के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर तारिक जावेद की जानिब से डॉक्टरों की टीम बानरो या मिंचन बंद पर पहुँच कर
कैंप लगाकर मरीजों का फ्री इलाज मुआवजा करने में मसरूफ। इलाका मकीनों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि हंगामी बुनियादों पर सैलाब मुतासरीन तक हर मुमकिन इमदाद पहुँचाई जाए। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी ठोलमजा। कसूर में अब्रे रहमत इंतजामिया की गफलत के बायस जहमत बन गई। शहर की सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। कसूर में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। नकासी आब का मुनासिब निजाम न होने के बायस शहर की सड़कों और गलियों में ताहाल बारिश का पानी जमा है। बारिश का पानी घरों में भी दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि बारिश का पानी कब्रिस्तान में भी दाखिल होने लगा। शहरियों का आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। विहाड़ी और शहर के गिरदोनवा में कुछ रोज से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों की बड़ी तादाद ने दरिया सतलुज का रुख कर लिया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नदीम। विहाड़ी शहर गिरदनवा में कुछ रोज से आसमान पर स्याह बादलों का राज है। वक्फा से बारिश का सिलसिला भी जारी है। बारिश से मौसम सुहाना हुआ तो शहरियों की बड़ी तादाद ने मौसम एंजॉय करने के लिए दरिया सतलुज हेड इस्लाम का रुख कर लिया है, जहां पर मर्दों, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद दरिया की सैर करने के साथ साथ दरिया की ताजा मछली खाकर खूब एंजॉय करने लगी। मछली फरोश दुकानदारों का कहना है कि बारिश और सुहाने मौसम इनकी दुकानों पर रश पड़ जाता है और लोग शौक से मछली खाने के लिए आते हैं। जदों प्यारा मौसम होवे ना जनाब, इत्थे ते बहुत दूरों लोग मछली खाने आते, तो मौसम बहुत एंजॉय वाला है। हासिलपुर से आए थे, फारग से, चलो मौसम को एंजॉय किया हेड इस्लाम पे। बहुत खुशगवार है और बहुत ही प्यारा मौसम है। हमने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया है। हमने मच्छी भी खाई है और हमने दरिया में कश्ती पर सवारी भी की है और हमने सेल्फी भी बनाई है। जबकि शहरियों का कहना है कि बच्चों और दोस्तों के साथ मछली खाने के लिए आए हुए हैं और खूब हल्ला गुल्ला भी कर रहे हैं। हल्की बारिश हो और बादलों का सुहाना मौसम हो तो शहरी भी खूब एंजॉय करने के लिए दरिया का रुख करते हैं, जहाँ ताजा मछली खाकर खूब लुत्फअंदोज भी होते हैं। कैमरामैन शहजाद मुगल के साथ मोहम्मद नदीम लक, सच न्यूज विहाड़ी। मुल्क में मुसलसल अब्रे रहमत बरसने के बायस ठंडी रातों ने दस्तक देना शुरू कर दी है। शाम के औकात में पार्कों में चहल पहल बढ़ गई। महकमे मौसमियात ने मानसून की बारिशें मजीद 2 दिन जारी रहने की पेशगोई भी की है। अटखेलियां करते बादल, छम छम बरसती बारिश और दिलों पर दस्तक देती ठंडी हवा पैगाम लाए हैं बदलते मौसम का। हफ्स का हो चुका है खात्मा, रुत भी बदली नजर आती है। मौसम ऐसा रंगीन है कि हर कोई इसके सहर में गिरफ्तार नजर आता है। शबनम से बोझल रातों में चांदनी का चांद जब अपने हुस्न का जलवा बखेरता है और रात की तारीकी का दामन तार तार करके हर गोशे को रोशन कर देता है तो चांदनी का सहर हर सू फैल जाता है। महकमा मौसमियात के हुकाम का कहना है कि इस बार मुल्क में मानसून की बारिशें मामूल से 10% ज्यादा होंगी, जबकि कश्मीर और सिंध में मानसून की बारिशें मामूल से 20% ज्यादा हो सकती हैं। रावलपिंडी, अटक, झेलम, चकवाल, मंडी भाउद्दीन, हाफिजाबाद, गुजरावाला, लाहौर, शेखपुरा, कसूर, फैसलाबाद, झंग, टोबा टेक सिंह, सरगोदा, मियांवाली, खुशाब, सियालकोट, गुजरात, ओकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन, भावलनगर और खानेवाल में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में दीर, सवात, मालाकंड, मुनेर, शांगला, कोहिस्तान, हरिपुर, मनसेरा, एबटाबाद, पेशावर, चारसदा, सवाबी, मर्दान, नौशहरा और अक्सई, हंगू, कोहाट और करम में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। PDMA ने तमाम मुतालिका महकमों को पेश के इक़दामात उठाने की हिदायत कर दी है। DG PDMA की जानिब से तमाम जिला इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों समेत दीगर मुतालिका महकमों को बाकायदा मरासला भी भेज दिया गया है। मुल्तान में हालिया बारिशों से कपास की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा। महकमा ज़राअत की जानिब से कपास के काश्तकारों की रहनुमाई के लिए ज़रई माहिरीन को जनूबी पंजाब के इलाकों में भेज दिया गया है। अहमद काशिफ की रिपोर्ट देखिए। महकमा ज़राअत पंजाब के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़रई माहिरीन को हिदायत जारी की गई हैं कि वो अपने ज़िम्मे कपास की तहसीलों में पहुंचकर फसल पर हमला, कीड़ों, बीमारियों की पहचान, तदारुक और मैनेजमेंट के सिलसिले में काश्तकारों की भरपूर रहनुमाई करें ताकि ज़रई ज़हरों के सही और बरवक्त इस्तेमाल से बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सके। कपास की साफ चुनाई बारे भी काश्तकारों को रहनुमाई फराहम की जाए। महकमा ज़राअत पंजाब के शोबे पेस्ट वारने के अफसरान समेत सूबा भर से शोबे तहकीक, अडाप्टिव रिसर्च और ज़रई यूनिवर्सिटियों के एंटोमोलॉजिस्ट और प्लांट पैथोलॉजिस्ट की ड्यूटियां लगाई गई हैं। तमाम डिप्लॉयड स्टाफ को 15 अक्टूबर तक इन सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए इन्हीं इलाकों में क्याम करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। इन माहिरीन को रोजाना की बुनियाद पर अपनी सरगर्मियों की रिपोर्ट एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स को भी भिजवाने की हिदायत जारी की गई हैं। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब ने काटन जोन में तैनात ज़रई माहिरीन को शोबा तौसी और पेस्ट वार्निंग के मकामी स्टाफ को हर मुमकिन मदद और तकनीकी रहनुमाई फराहम करने की हिदायत जारी की हैं।
اور متعلقہ اضلاع کے ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع کو پابند کیا ہے کہ وہ زرعی ماہرین کو ضروری سہولیات فراہم کریں۔ احمد کاشف، سچ ٹی وی، ملتان۔ جھنگ کی تحصیل احمد پور سیال میں مونسون بارشوں سے جہاں زمین سیراب ہوئی وہیں فصلوں کو بھی فائدہ پہنچا ہے۔ رپورٹ کریں گے تصور عباس۔ مونسون کا آغاز ہوتے ہی ملک بھر کی طرح جنوبی پنجاب میں بھی بادلوں کا راج ہے۔ کہیں ہلکی تو کہیں موسلادھار بارش سے گرمی کی شدت میں کافی حد تک کمی واقع ہو چکی ہے۔ شہر بھر کی سڑکیں اور گلیوں میں پانی بھر جانے سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ تیز بارشوں کی وجہ سے مکانوں کی چھتیں بھی گر گئی ہیں۔ بارش جسے برہان رحمت کہا جاتا ہے، اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خاص کر جنوبی پنجاب سمیت احمد پور سیال اور اس کے مضافات میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے فصلات بالخصوص کپاس کی فصل کے علاوہ دھان کی فصل کو فائدہ پہنچا ہے۔ اگر مزید بارشیں ہوتی ہیں تو مذکورہ فصل کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، جبکہ دیہات میں مویشی پال حضرات کو مویشیوں کو خوراک اور بارش کی وجہ سے کیچڑ جمع ہو جانے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ مونسون کے بادل اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں، جہاں چاہیں پیاسی دھرتی کو سیراب کر دیتے ہیں۔ کیمرامین محمد عباس کے ساتھ تصور عباس، سچ ٹی وی، امن پور سیال۔ کشمور کی تحصیل تنگوانی کے علاقے غوث پور میں بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ سڑکوں پر کیچڑ اور بارش کا پانی جمع ہونے کی وجہ سے شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ رپورٹ کریں گے شاہ نواز۔ تنگوانی کے علاقے غوث پور شہر میں 4 روز قبل ہونے والی بارش نے غوث پور شہر انتظامیہ کے نااہلی کے پول کھول کر رکھ دیے ہیں۔ غوث پور شہر اور تنگوانی کو ملانے والے روڈ پر کیچڑ پانی جمع ہونے کی وجہ سے شہریوں کو آنے جانے میں تمام مشکلات درپیش ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی دن گزر چکے ہیں، انتظامیہ نیند میں ہے، ہمیں آنے جانے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس روڈ سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو چکی ہے۔ انہوں نے ضلعی انتظامیہ کو اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس روڈ پر جمع پانی اور کیچڑ کی نکاسی کا کام جلد از جلد عمل کروایا جائے تاکہ یہ روڈ قابل استعمال ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہ نواز بیجارانی، سچ نیوز، تنگوانی۔ سیالکوٹ میں بہار کالونی کے رہائشی سیوریج کے گندے پانی کے باعث شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ اہل علاقہ کا انتظامیہ سے جلد صفائی کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ سیالکوٹ کے امن آباد روڈ پر واقع بہار کالونی میں علاقہ مکینوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ گلیاں اور مین گٹر لائن کی سپلائی بند ہونے کی وجہ سے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ سیوریج کا نظام تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ مساجد میں جانے والے نمازیوں کو بھی اسی گندے پانی سے گزر کر ہی مسجد جانا پڑتا ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ گٹر لائن بند ہونے سے کچرا مین لائنوں میں چلا جاتا ہے، جس سے مزید مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ مسئلے کو فوری حل کر کے علاقہ مکینوں کو اذیت سے چھٹکارا دلایا جائے۔ حیدرآباد شہر بھر کی اہم شاہراہیں بارش کا پانی جمع ہونے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں۔ شہری آئے دن حادثات کا شکار ہو رہے۔ مزید جانتے ہیں جانزیب علی کی رپورٹ میں۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں حالیہ بارشوں سے شہر بھر کی عام شاہراہوں سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں۔ مین آٹوبان روڈ، فتح چوک اور لطیف آباد یونٹ نمبر 10، 11 اور 12 کی بیشتر سڑکوں میں پانی جمع ہونے سے جگہ جگہ کھڈے پڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے گزرنے والے شہری آئے دن حادثات کا شکار ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہر بھر کی عام شاہراہیں پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں، لیکن حالیہ بارشوں سے حالت اور ابتر ہو گئی ہے۔ آٹوبان کا روڈ ہے، یہ پہلے سے روڈ ٹوٹا ہوا ہے۔ ادھر پہلے بلجیا جی ادھر کوئی رسپانس نہیں ہے، کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ برا حال ہوا ہوا ہے حیدرآباد کی سڑکوں کا، حالانکہ مین شاہراہی حیدرآباد کی آٹوبان لنک ہوتا ہے اس سے، اس کے باوجود اتنا پانی کھڑا ہے ادھر۔ اتنا ہر روڈ ٹوٹا پڑا ہے، جگہ جگہ کھڈے ہیں۔ ہم غریب لوگ جو ہے بائک جو چلاتے ہیں یا رکشہ چلاتے ہیں، ہم لوگ خوار ہو جاتے ہیں روڈوں پہ۔ روڈ خراب ہے، یہاں سے لے کے آگے تلک بالکل خراب ہے، گدا گاڑی بھی نہیں چل سکتی ہے، تو یہ گاڑیاں کیسے چلیں گے؟ شہریوں نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا کہ شہر بھر کی عام شاہراہوں اور سڑکوں کی تعمیر نو کروائی جائے تاکہ شہری ہونے والے حادثات سے بچ سکیں۔ کیمرامین اشتیاق حسین کے ساتھ جہانزیب علی، بیورو چیف سچ نیوز، حیدرآباد۔ ملتان کی تحصیل شجاع آباد میں بستی ملوک اور دنیا پور کو ملانے والا واحد روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وجاہت حسین کی اس رپورٹ دیکھیے۔
शुजाबाद की मेन शाहरा और बस्ती मुल्क और दुनियापुर को मिलाने वाला वाइड रोड खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार होने के बायस गुज़श्ता रोज होने वाली मूसलाधार बारिशों के बायस निकासी आप के नाकिस इंतजाम की वजह से जगह जगह बारिशों का खड़ा पानी ज्वार का मंजर पेश करने लगा, जिसके बायस आस पास के रहने वाले इलाका मकीनों में टाइफाइड मलेरिया जैसी मुख्तलिफ मौजूदी बीमारियां फैलने का खदशा और गुजरने वाले राहगीरों को भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों का म्यूनिसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहना था मेन मसला सीवरेज का निजाम का है। सीवरेज में इसकी निकासी जो है वो कहीं नहीं दिखाई जाती, रिस्क घरों में जाता है, उनकी बुनियादें हिल रही हैं और ये बाकी पानी जो है सड़क पे आ जाता है। हालांकि इस वक्त ये बस्ती मोहम्मदपुर जो है कमेटी के अंदर भी आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमने 12 एहतजाज किया, उसके बाद हमारे सीवरेज का निज़ाम नहीं था तो उन्होंने बोला कि हम आपको नाला बना कर देते हैं। नाला इन्होंने ऐसा बनाया कि हमारी आबादी से 4 फीट ऊपर बना दिया। अब हमारे वैसे ही हम 4 फीट नाले से नीचे हैं, हमारे वैसे ही अगर बारिश ना भी हो तो हमारे गली मानों का घर जो है 4-4 फीट में वैसे ही भर जाता है। तो निकासी का इसका अपना नाले का कोई निकास नहीं है, कहीं कोई सिस्टम नहीं है, रोडों पर पानी है, घरों में पानी है। तो किसी MNA साहब ने, MPA साहब ने या AC साहब ने किसी ने भी हमारे किसी बात को कोई सुनवाई नहीं। मुबशिरुल हक कैमरा वजात हुसैन, सच न्यूज़, शुजाबाद। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अभी गुजरांवाला में अंडरपास पर तामीर किए जाने वाले रेलवे पुल साल से मुरम्मत न होने के बायस खस्ता हाली का शिकार हो चुके हैं। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ सच न्यूज़ गुजरांवाला से साजिद अवान अपनी इस रिपोर्ट में। गुजरांवाला शहर की सबसे मसरूफ शाहराहों में से एक शाहराह DC रोड है, जहां करोड़ों रुपए से तामीर किए जाने वाले अंडरपास के ऊपर रेलवे का पुल है, जो रेलवे हुक्काम की गफलत और नाअहली के बाइस मुकम्मल तौर पर जंगालूद हो चुका है। अरसा कई सालों से मुरम्मत न होने के बाइस इसकी चादरें फट चुकी हैं, जबकि नट बोल्ट भी ढीले होकर खुलते जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि पुल की खस्ता हाली के बाइस पुल के नीचे से गुजरते वक्त भी डर लगता है। जगह जगह से टूटी हुई लोहे की चादरें गिरने से कोई जानी नुकसान हो सकता है। नीचे से गुजरते हैं वो डर लगता है कहीं बड़ा हादसा ना हो जाए। हुकूमत से अपील है कि इसको नया बनवाया जाए। हुकूमत का इधर कोई भी जो है ना तवज्जो नहीं है, तो चाहिए कि इसकी जो है ना तमीर किया जाए। इसको अंडरपास का पुल बहुत खस्ता हालत में है, इधर से अभी ट्रेन गुजरी है तो देख के खौफ आ रहा था। इस पुल की हालत इस कदर अबतर हो चुकी है कि जब इसके ऊपर से ट्रेन गुजरती है तो ये पुल जोर जोर से हिलता है, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे की सूरत इख्तियार कर सकता है। रेलवे हुकाम को चाहिए कि किसी भी बड़े हादसे का इंतजार करने के बजाय रेलवे ब्रिजेस की फिलफौर मुरम्मत की जाए। कैमरामैन अली रजा के साथ साजिद आवान, सच न्यूज़, गुजरांवाला। रहीम यार खान के इलाके भोंग की बस्ती आबिद शाह में बारिश से 11,000 kV के पोल गिर गए। भोंग के नवाई इलाका बस्ती आबिद शाह में गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश की वजह से बिजली के 2 पोल गिर गए हैं। 3 दिन गुजर जाने के बाद भी बस्ती की बिजली बहाल न हो सकी। अहले इलाका के मुताबिक मुतअद्दिद बार वापटा सब डिवीजन रहीमाबाद को इत्तला देने के बाद भी बस्ती की बिजली ताहाल बहाल न हो सकी। अहले इलाका ने सादिकाबाद और आला हुकाम से अपील की है कि फौरी बिजली बहाल की जाए। आगे बढ़े और बात करें बढ़ती महंगाई की, तो मुल्क भर की तरह सखर में महंगाई का जिन बेकाबू है। शहरी हुकूमत से नाला दिखाई दे रहे हैं, कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करे। तेजी बढ़ते हुए महंगाई के तूफान से गरीब तबका शदीद मुतासिर हो रहा है। मुल्क में तेजी से बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। आटा, चीनी, दालें, आयल समेत दिगर अशिया खुर्द-ए-नोश की कीमतों को पर लग गए हैं। इससे आम आदमी के साथ साथ ताजिर भी सख्त परेशानी का शिकार हैं। मौजूदा हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों ने मेहनत कश गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल कर दिया है। मौजूदा हुकूमत से आवाम को जो उम्मीदें वाबस्ता थी वो उम्मीदें अब दम तोड़ चुकी हैं। शहरियों का कहना है कि मुहर्रम उल हराम के महीने में तमाम अशिया खुर्द-ए-नोश के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। बढ़ता जा रहा है, चीनी कम कर दूंगा बढ़ती जा रही है, आयल कम कर दूंगा बढ़ती जा रही है। जिस चीज पे कम कहने का नाम ले रहा है वो बढ़ती हुई जा रही है। हम तो इसको हाथ बांध के कह रहे हैं कि भाई अभी किसी भी चीज का ये नहीं बोलना कि ये चीज कम कर दी हमने या ये चीज कम कर रहा हूँ मैं। बस हमारे को 13,000 रुपए सैलरी पे गुजारा नहीं हो रहा, अब हम खुदकुशियों पे मजबूर हो गए। बढ़ चुकी है इस टाइम पे, आवाम समेत छोटे ताजिर जो है सब यानी कि इस टाइम बहुत परेशान है। गवर्नमेंट जो है महंगाई पर काबू पाने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। आटा देख लें वो 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है इस टाइम सक्कर शहर के अंदर। चीनी जो है 100 रुपए बिक रही है, जबकि आवाम की सहूलत के लिए गवर्नमेंट ने जो सस्ते स्टॉल लगाए थे वो भी इस टाइम बंद हो चुके हैं।
यूटिलिटी पे जाएं तो वहाँ पे चीनी और आटे का नामो निशान नहीं है। आवाम जो है परेशान हो चुकी है इस टाइम पे, और इसके साथ साथ छोटे ताजिर जो है वो भी परेशान हो गए। दिन जो चीनी 70 रुपए किलो थी अब वहाँ 95 रुपए चल रही है। जो आटा 45 रुपए किलो उठाते थे अब वो आटा 60 रुपए मार्केट में चल रहा है। दालें, मिर्ची, जो भी चीज लोग है ना, सब चीज महंगी हो गई है। हुकूमत तेजी से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करते हुए आवाम को रिलीफ फराहम करे। बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का गंदा पानी सब्जियों की काश्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बायस शहर में मुख्तलिफ खतरनाक बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया। अब्दुल गनी काकड़ रिपोर्ट करेंगे। लाखों नफूस पर मुश्तमिल सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा के मगरबी इलाके स्पेनी रोड, सब्जल रोड और दीगर मुल्हिका इलाकों में सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला गुज़श्ता कई अरसे से जारी है और मुतल्लिका हुकाम की बेहिसी के बायस ये मुज़िर सेहत सब्जियां सब्जी मंडियों में भी सरेआम सप्लाई की जाती हैं, लेकिन इस हवाले से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। अब देखो यहाँ पे जो है प्योर कोई पानी नहीं, सिर्फ ये इलाका नहीं, ये इलाका भी सारे जो है गंदे पानी से, तो ये सब्जियां जो है फिर जाते हैं मार्केट में, फिर वापस ये लोग आम खाते रहे, जो बहुत नुकसानदेह सेहत के लिए भी माशरे के लिए भी। तो इसके खिलाफ गवर्नमेंट को जो भी मुतल्लिका इदारा दे मस्ट टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट दीज कल्प्रिट्स। तिबी माहिरीन के बकौल गंदे पानी से काश्त होने वाली सब्जियों में पाए जाने वाले आर्सेनिक, मरकरी, लीड और कॉपर जैसे नुकसानदेह अज्जा की हद से ज्यादा मिकदार शामिल होती है। इसीलिए इन मुज़िर सेहत सब्जियों के इस्तेमाल से शहर में लोग यरखान, एलर्जी और पेट की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। माहिरीन के बकौल इन मुज़िर सेहत सब्जियों की काश्त का सिलसिला अगर बंद न किया गया तो मुस्तकबिल में इन सब्जियों के इस्तेमाल से मजीद हजारों लोग खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। लॉयरदीर में वापडा मुलाजमीन के तबादलों के खिलाफ वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन ने जिला भर में हड़ताल कर दी। वापडा मुलाजमीन ने प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली भी निकाली। रिपोर्ट कर रहे हैं रहमतुल्लाह सवाती। लोअर दिल में वापडा मुलाजिमीनों के तबादलों के खिलाफ वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक वर्कर्स यूनियन ने जिला भर में तालाबंदी हड़ताल करके प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन से वापडा हाई के रहनुमा हजरत फकीर नसरुल्लाह मोहम्मद अशीर और दीगर ने खिताब करते हुए वापडा मुलाजिमीनों के तबादलों को महकमा वापडा में सियासी मुदाखलत करार दिया और एक हफ्ता को डेडलाइन देते हुए खबरदार किया, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर वापडा मुलाजिमीनों के तबादलों को कैंसिल न किया गया तो जिला भर में बिजली मुनक़ता करेंगे। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअर दिल। के नवाई इलाके हरनौली में तजावुजात की भरमार है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। मोहम्मद आसिफ रिपोर्ट करेंगे। पिपला के नवाही इलाका हरनौली के लारी अड्डा पर तजावुजात की भरमार है। जगह जगह खड़े रेहड़ी बानों और नॉन पार्किंग एरियाज में खड़ी की जाने वाली गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स और रिक्शाज ने शहरियों को शदीद परेशानी से दो चार कर रखा है। न कोई खड़ा होने की जगह है और अपनी जागीर बना रखी है। मेरी गुजारिश है तहसील इंतजामिया से कि आकर इस पर कार्रवाई की जाए और इन्हें रोका जाए। रोड को खाली क्यों नहीं कराते? ये तहसील इंतजामिया की ड्यूटी है, वो दफ्तरों तक महदूद हैं। यहाँ रोड ब्लॉक हो जाता है, जगह नहीं है, ब्लॉक कोई पार्किंग की जगह है, कोई गाड़ी वगैरह पार्क कर ले, या क्रॉसिंग का भी मसला है, एक्सीडेंट भी रोज होते हैं चौक के अंदर। फिलहाल हमारी अपील है कि इस बारे में जो है ना तौर पर तवज्जो दी जाए, ताकि जाए तजावुजात को खत्म करके इनको और ठीक किया जाए। शहरियों का कहना है कि रेहड़ी बानों को तरतीब में खड़ा करने और जगह जगह गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रिक्शाज की गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ मुनासिब हिकमत अमली से शहर के रोड्स को तजावुजात से पाक करके शहरियों को इस अजियत से निजात दिलाई जा सकती है। कैमरामैन अब्दुल गफार भचर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, तहसील पिपला, जिला मियांवाली। हुकूमत पंजाब की जानिब से मुतारिफ कराई जाने वाली बल्दिया ऑनलाइन ऐप का कमालिया में इफ्तिताह कर दिया गया। सूबाई वजीर वुमेन डेवलपमेंट आशिफा रियाज फतेहाना ने ऐप में रजिस्ट्रेशन होकर बाकायदा ऐप का इफ्तिताह किया। रिपोर्ट कर रहे हैं असद राजपूत।
حکومت پنجاب کی جانب سے بلدیہ آن لائن ایپ متعارف کروائی گئی جس میں عوام کو برت و اموات، شادی و طلاق سمیت شکایت کے اندراج کے لیے آن لائن سہولت میسر کی گئی۔ اس سلسلہ میں صوبائی وزیر ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ آشفا ریاض فتیانہ نے بلدیہ آن لائن اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے خود کو رجسٹر کیا۔ اس کے علاوہ آن لائن اپلائی کرنے والے افراد میں سرٹیفکیٹ جاری کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر و ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی محمد عرفان ہنجرا نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ضلع بھر میں کمالیے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے آن لائن اپلائی کرنے والے افراد کو فوری سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا اور ڈیش بورڈ کو خود مانیٹر کر رہا ہوں۔ اس موقع پر صوبائی وزیر ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ آشفا ریاض فتیانہ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے مسائل کا حل عوام کی دہلیز تک پہنچانے کی یہ ایک کڑی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے تمام اداروں میں کرپشن کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں اور ریکارڈ کو آن لائن کیا جا رہا ہے، لہٰذا عوام اس ایپ کو زیادہ سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کریں اور نقول کے اصول سمیت شکایت کے بر وقت ازالے کے لیے ایپ کے ذریعے آن لائن دفاتر سے رابطہ کریں۔ اسد راجپوت، ساچی نیوز ٹی وی، کمالیہ۔ کوٹ سبزال کے نوائی علاقے سنجر پور میں وابڈا کی نااہلی، محنت کش کے گھر کے باہر ٹرانسفارمر لگا دیا۔ ایس ڈی او صادق آباد کو متعدد بار شکایات کرنے کے باوجود بھی کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ رپورٹ کریں گے حماد اللہ۔ کوٹ سبزال کے نوائی علاقے سنجر پور میں وابڈا کی نااہلی محنت کش کے دروازے کے آگے ٹرانسفارمر نصب کر دیا۔ موسم برسات میں شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے جس سے کئی قیمتی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ اس موقع پر وہاں کے رہائشی کا کہنا تھا ڈاڈی تکلیف ہے، اسا کئی دفعہ ساڑ چکو ہوں، سنی بال چھوٹے چھوٹے بال تلو پھر دن اسا کو ہر دم خطرہ رہتا ہے سنی تے جڑی وہ لائن اتو کھڑی ہے، لائن کو اگلے جاڑے باہ لگی ہے، باہ لگی ہے، سارے گھر مشکل نال بچن، اگر بھر گھر پکے نہ ہوندے تے اسا سارے سڑ بننا، مال سڑ بننا۔ وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، ایکسین وابڈا اور ایس ڈی او صادق آباد سے اپیل ہے کہ اس ٹرانسفارمر کو یہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ نصب کیا جائے تاکہ ہمارے بال بچے محفوظ رہ سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حماد اللہ، سچ ٹی وی، کوٹ سبزال۔ سناوا کے علاقے قصبہ گجرات میں پٹواری کی رشوت لیتے ہوئے ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ عبد المجید نامی پٹواری نے انتقال کی کاپی دینے کے لیے شہری سے 30,000 روپے رشوت وصول کی۔ سناوا میں رشوت ثانی عروج پر پہنچ گئی۔ پٹواری کی رشوت لینے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ عبد المجید پٹواری نے محمد شفیق گبول کی اراضی میں ہیر پھیر کرنے کی کوشش کی۔ انتقال کی کاپی مانگنے پر عبد المجید نامی پٹواری نے 30,000 روپے شہری سے رشوت وصول کی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پٹواری شہری سے رشوت وصول کر رہا ہے۔ لودھرا میں ریسکیو 1122 نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں سے بھی محبت کی مثال قائم کر دی۔ ریسکیو ٹیم نے نالے میں گری گائے اور نہر میں گری بھینس کو زندہ نکال لیا۔ رپورٹ کریں گے کاظم عباس۔ ریسکیو 1122 ایک ایسی فورس ہے جو ہر قسم کے حادثات میں عوام کی خدمت کے لیے ہر دم تیار رہتی ہے۔ یہاں تک جب کوئی جانور بھی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کے لیے بھی ریسکیو 1122 کے جوان فوری طور پر پہنچتے ہیں۔ لودھرا کے نوائی علاقے کوٹلی موڑ کے قریب گائے سیوریج کے گہرے کنویں میں گر گئی، جس کی اطلاع ریسکیو 1122 لودھرا کو دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچی اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں سے بھی محبت کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے 1 گھنٹے کے طویل ریسکیو آپریشن کے بعد گائے کو زندہ کنویں سے نکال دیا۔ ریسکیو آپریشن کے بعد ریسکیو 1122 ٹیم میں پبلک سیفٹی کے لیے کنویں کو لکڑیوں کے ساتھ کور کر دیا تاکہ آئندہ اس قسم کا کوئی حادثہ پیش نہ آئے۔ دوسرے واقعے میں پل گوپال کے قریب بھینس نہر میں گر گئی، جس کی اطلاع ریسکیو 1122 لودھرا کو دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 ٹیم موقع پر پہنچی اور ریسکیو آپریشن کے بعد بھینس کو زندہ نہر سے نکال دیا۔ اہل علاقے نے دونوں واقعات میں ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کی بھرپور داد دے کر حوصلہ افزائی کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر کاظم عباس بلوچ، بیورو چیف، ساچی نیوز، لودھرا۔ پاک پتن میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیاں کر کے امن و امان قائم کرنے والے ڈی پی او کے تبادلے کی خبر سنتے ہی شہری ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے تھامے انہیں الوداع کرنے ڈی پی او آفس میں امڑ آئے۔ طارق علی چودھری کی رپورٹ دیکھیے۔ شہریوں کا جرائم پیشہ افراد کو نکیل ڈالنے والے ڈی پی او سے واہلیانہ محبت کا اظہار۔ تبادلے پر اولاد گنج شکر پیر عبدالظاہر چشتی، چیئرمین مرکزی انجمن تاجران رانا محمد رمضان، صدر چودھری اظہر محمود، پریس کلب کے عہدیداران و وکلاء اور سول سوسائٹی کی جانب سے سابقہ ڈی پی او صاحبزادہ بلال عمر کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے۔ شرکا سے خطاب کے دوران صاحبزادہ بلال عمر کا کہنا تھا کہ الحمدللہ پاک پتن میں گزشتہ 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس کی وجہ سے پنجاب پولیس کو، جو ہمارا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے،
उसको हमारी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ी। PSA के सेक्रेटरी जनरल हकीम लुत्फुल्लाह ने खिदमात के एतराफ में साबका DPO को गोल्ड मेडल और तारीफी सर्टिफिकेट से अलविदा किया। कैमरा टीम के साथ चौधरी तारिक अली, सच TV, पाकपतन। अटकी तहसील जंड में मिट्टी के बर्तन और मिट्टी से तैयार होने वाली चीजों के कारीगर अपना सानी नहीं रखते। कमाल व महारत से कारीगर मिट्टी के बर्तन तैयार करते हैं और इन पर नक्शो निगारी करते हैं, मगर हुकूमती सरपरस्ती न होने की वजह से ये फन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। मजीद जानते हैं हाफिज मोहम्मद शफीक की इस रिपोर्ट में। जिला अटक की तहसील जंड में मिट्टी के बर्तन और मिट्टी से तैयार होने वाली आरैशी चीज़ों के कारीगर अपना सानी नहीं रखते। मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद उनको धूप में रखकर खुश्क किया जाता है। उसके बाद उन पर मुख्तलिफ डिज़ाइन और नक्शो निगारी का काम किया जाता है और जब मिट्टी के बर्तन तैयार हो जाते हैं तो उनको मुल्क के दीगर हिस्सों में भेजा जाता है। मिट्टी के बर्तनों में खाना खाना भी सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके अलावा तिब्बी माहिरीन का भी यही कहना है कि मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने से इंसान बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहता है और इंसान की सेहत भी अच्छी रहती है। मिट्टी के बर्तन तैयार करने वाले कारीगरों का कहना है कि हम अपनी मदद आपके तहत इस पेशे को जिंदा रखे हुए हैं, क्योंकि मिट्टी के बर्तन बनाने में वक्त बहुत ज्यादा खर्च होता है और इसका जो मुआवजा हमें दिया जाता है वो बहुत कम होता है। अगर हमें हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो जाए और हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे तो ये फन जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, हम इस फन को जिंदा रख सकते हैं। कैमरा टीम के साथ हाफिज मोहम्मद शफीक, सच न्यूज जंड। और अब आपको खबर दें, वतन अजीज की खातिर जान की कुर्बानी देने वाले बहादुर सपूत खानपुर के कैप्टन फयाज शहीद की बरसी के मौके पर उनकी याद में कैप्टन फयाज घंटियां शहीद चौक में फूल चढ़ाए गए और फातिहा ख्वानी की गई। मजीद जानते हैं जहांजेब खान की इस रिपोर्ट में। गैर बसालत पाने वाले 2009 में वतन अजीज की खातिर जान की कुर्बानी देने वाले पाकिस्तान के सपूत कैप्टन फयाज गुनिया शहीद की बरसी के मौके पर इनकी याद में कायम कैप्टन फयाज गुनिया शहीद चौक पर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी रहीमिया खान के वफद ने मेजर रिटायर्ड सरफराज अहमद की क़यादत में हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर मेजर रिटायर्ड सरफराज अहमद ने कहा कि कैप्टन फयाज अहमद गुनिया खान खानपुर का सपूत बेटा और हमारा फख्र है और मैं सलाम पेश करता हूँ कैप्टन शहीद के वालिदैन को, जिन्होंने जिस हिम्मत और जज्बे के साथ इस कुर्बानी पर सर तस्लीम खम किया। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स और हमारे पुलिस के जवान जिन्होंने मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, हम इन्हें भी खराज तहसीन पेश करते हैं। इस मौके पर कैप्टन फयाज शहीद दुनिया के वालिदैन का कहना था कि 2009 में वतन अजीज की बका की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया और न सिर्फ खुद हमेशा के लिए अमर कर गया बल्कि हम सर का सर भी फख्र से बुलंद कर गया, जिस पर मैं जितना भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूं कम है। कैमरा टीम के साथ जहांजेब खान, सच न्यूज, खानपुर। इलाकाई खबरनामे से फिलवक्त दीजिए इजाजत। मजीद किसी भी खबर या अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।